Hello, dear friends. Myself Pratik Poekar, and today here I am to deliver not just any lecture for everybody. I'm here not just to give you a speech or to get a topic clear with regards to 11th standard economics, but I'm here to impart something good, and that good is something which is called as knowledge. Students, when we are in 11th, and specifically, first of all, before I move ahead for anything, heartiest congratulations for passing your 10th standard board examinations with flying colors. And I'm sure now the sky is the limit. And very happy for the fact that you have chosen commerce as a field of your career. That's highly, highly important. All the very best, everybody, and let's resume with the sessions now. Students, the first subject that I have purposefully taken, the first subject that I have purposefully opted for is economics. You will question me, why economics? Sir, there are many other subjects. There are subjects like mathematics. There are subjects like accountancies. There is subject like OCM, secretarial practice. All these subjects are there, sir. Why have you chosen something like economics? Is economics something really boring, what we see on news channels every day? Is economics something which is related to your and my life? Is economics something which is going to help or which helps each and every one of us on our day-to-day basis? And the answer remains yes, it does help each and every one of us. Because जितने भी आज तक दुनिया में इकोनॉमिस्ट हुए हैं, all the great economists those have been born and brought up in this world, some of the greatest ones who have went on to win the Nobel laureates as well, उन सब लोगों ने at the end of the day have proved it. It's a proven fact with regards to economics. और वो proven fact ये है कि this is the most important science after science. I'm repeating again. This is the most important science after science because this is the only science which will talk about and which talks about money. It talks about finances. It talks about income and expenditure. It talks about profit and loss. In economics, we are going to call it here on as surplus and deficit. And the most important part, it gives a person his own net worth in terms of financial values. And that is why economics is a science after science, which is typically being called, pragmatically being framed as a financial science. To be very honest and clear about it, it is called as a financial science. The first branch of science which comes, सबसे पहली science की जो branch आती है, that's called as a science, which we all know. It includes physics, it includes chemistry, it includes biology, and then all the in-depth parts into it. A science which you and me till now are aware of this fact कि ये वो पार्ट है जो टू कंपोनेंट्स को सर एक साथ लेते हैं, उसमें से थर्ड आइटम कुछ थर्ड कंपोनेंट हम फॉर्म करेंगे टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, दैट्स कॉल्ड एज अ साइंस. मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स टुगेदर, दैट्स साइंस. एग्रीड. तो सर ये साइंस कौन सा है? सर ये साइंस वो साइंस है जो फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में देखता है, जो आदमी के इनकम एक्सपेंडिचर्स देखेगा, एंड देन इवेंचुअली इट विल लीड फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू अ कंट्रीज इकोनॉमी, टू अ कंट्रीज जीडीपी, टू अ कंट्रीज नेशनल इनकम, and to a nation's PCI called as per capita income. तो सर ये वही साइंस है क्या? ये वही सब्जेक्ट है which we see on news channels almost on a daily basis every night at 9 o'clock, जो कहते हैं इंडिया की जीडीपी इतने परसेंट से बढ़ेगी, इतने परसेंट से कम होने वाली है, कोरोना हैज अफेक्टेड इकोनॉमी वेरी मच. क्या यही इकोनॉमिक्स है? जरूर. लेकिन वो इकोनॉमिक्स जो हम बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी इकोनॉमिक्स व्हिच इज कॉल्ड ऑन अ मैक्रो लेवल. वो मैक्रो लेवल का इकोनॉमिक्स है. हम बात करने वाले हैं फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. वी आर गोइंग टू फर्स्ट टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ एन इकोनॉमिक्स व्हिच स्टार्ट्स विद मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, एंड दैट्स व्हाई दिस इकोनॉमिक्स इज द रूट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एन एंटायर ट्री. इफ दिस इकोनॉमिक्स इज नॉट गोइंग टू होल्ड द एंटायर ट्री, द ट्री विल कोलैप्स, and that's why this economics will purely talk about microeconomic sciences. So I welcome all of you to economics, one of the most important subject, varied subject, a very dynamic subject to learn, and mark it everybody, the same subject which is going to be with you, with me, with every one of us
Let it be the poorest of the poorest person in the society today, in the economy, to an example, to the middle class, to the higher middle class, to the rich, the richest, and the creamy layer class of India, and not just India but of entire world. ये सारे जो लोग हैं, right from the poorest till the richest one, the poorest person in some local village in India, in any country, to the person, the richest one on the planet today, Mr. Jeff Bezos, जो Amazon के owner है. Everybody has to deal with economics at every point of time. I won't be wrong to say that every person deals with economics day in and day out, every second, every minute, every hour of their life, of our life, we deal with economics. क्योंकि man is a social animal. Man is a social animal जो at the end of the day सिर्फ और सिर्फ lives his life to earn better and to increase his own standard of living. So let us get back everybody to the textual part of it. I once again welcome all the 11th standard students and I welcome you happily, heartily. We are late because of Corona, but we are not going to be stopped. We will remain unstoppable. Let's start everybody. So let us get back to the technical analysis, the technical part of it, from every chapter, from every point. Let's get back everyone. So the first, this is the front page of your textbook. If you haven't yet bought your textbook from any shop, from any bookstore, make sure बाल भारती की साइट है ebalbharti.com. I am writing it over here. Please notify yourselves again. Bal Bharti. In the column for 12th standard, you will straight away have an option for all the textbook, right from economics, accounts, OC, SP, mathematics, English, and your second language. Just to remind everybody, every college, this is an added information that I'm providing, please listen to this. Every college in the cities, you take any part of Maharashtra today, every college offers 4 compulsory subjects. Please note everybody. The first one is accountancy, second one is economics, third one is English, and fourth one is second language. ये सब्जेक्ट्स आपको कंपल्सरी लेने पड़ते हैं फॉर कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड सेकेंड लैंग्वेज. नाउ देर आर सम डिबेट ओवर हियर. मेनी कॉलेजेस ऑफर सेकेंड लैंग्वेज में वेरिड सब्जेक्ट्स. देर कैन बी फ्रेंच, देर कैन बी जर्मन, देर कैन बी मराठी, देर कैन बी हिंदी, and there can be Sanskrit as well. If the college is better off, then the college can also offer something called as Spanish, and the college nowadays have started opting even for Japanese language. So Japanese as well. Accounts and economics, this has to be there because one is going to teach you the mathematical part and the other is going to teach you the theoretical part of the same constraint. So please make sure you understand this as well. And then English, the basic language again, which has to be there. To remind everybody and to note all of you, English for 11th is purely based on literature. लेकिन इसमें ऐसा है कि लिटरेचर बेस्ड इंग्लिश है, उसमें लिटरेचर बेस्ड इंग्लिश कम्स इज रादर इट कवर्स टोटल 40% ऑफ द सिलेबस. 40% एक्चुअल पेपर में से 40% ऑफ द एक्चुअल 100% पेपर जो लिटरेचर बेस्ड पेपर है. मतलब द पेपर इज गोइंग टू बेस्ड ऑन प्रोज एंड पोएट्री ऑफ योर एंटायर इंग्लिश 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. टू नोटिफाई टू एवरीबडी, 11th इकोनॉमिक्स का इंग्लिश जो है, 11th कॉमर्स का इंग्लिश जो है, दैट इज सेम फॉर कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस. सो देयर इज नो डिफरेंस अगेन. एंड देन रिमेनिंग, लेट्स मूव फर्दर. Then there is something called as grammar. This grammar covers again 30% of your paper, and then remaining 30% is inclusive of your drafting. इसमें there is going to be something called as letter drafting, report drafting, counter view drafting, news item drafting, so on a better level, which will improvise on your English as well. So this is going to cover your remaining 30% of your portion. ऐसे हमारे English का syllabus divided है. Now where is the issue? All the colleges do not offer
रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, एसपी, ओसी, ये सभी कॉलेजेस में नहीं रहते बिकॉज देर आर ऑप्शंस. Some colleges have OC as again a compulsory subject, so again this becomes your 5th one. Some colleges keep option between mathematics and SP. Some colleges keep an option between mathematics, information technology and SP. So there is variations. And last but not the least, listen to me carefully what I'm saying, last but certainly not the least, seats are limited. सीट्स आर लिमिटेड. इसका मतलब क्या है? सीट्स आर लिमिटेड का मतलब है एवरी कॉलेज विल नॉट ऑफर, रादर ऐसा होता है कि आपको अगर मैथमेटिक्स चाहिए, आपके परसेंटेज, आपका रैंक अगर फर्स्ट लिस्ट में है, वो भी पहले लिस्ट में फर्स्ट 90, फर्स्ट 100, फर्स्ट 110, उनके अगर आपके क्राइटेरिया में आपके परसेंटेज है तो ही द कॉलेज विल ऑफर यू मैथमेटिक्स, बिकॉज मैथमेटिक्स के एसपी के सीट्स उनके मिनिमम 80 टू मैक्सिमम 100 ही होते हैं. If your name is there in second, third, fourth list, then automatically you will not be given mathematics. You will have to take an optional subject. तो सर अभी नहीं मिला तो हम 12th में ट्राई कर सकते हैं क्या? ज़रूर ट्राई करना 12th में. So don't worry about it. So this is the overall criteria of your 11th standard. I wish you all the very best. कुछ भी issue है, my number would be there in the description box. Definitely call. This will make you clear because even today, due to varied political reasons, आज भी after first list, second, third, fourth list haven't been talked about. Though the government of Maharashtra clearly said on if I'm not wrong 29th और 30th of October के न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल था जिसने कहा कि FY जैसी कॉलेजेस वुड बिगिन फ्रॉम 2nd of November. तो ऐसा है, तो मेक श्योर यू आर ऑल आर एब्सोल्युटली अवेयर अबाउट इट. Let us get back everyone. So always remember, economics है तो आपको इसके बारे में तो obviously you'll have to be well acquainted. Money, because there is money, there is economics, there is economics. Where there is economics, there is money, and where there is money, there has to be economics. It's like the two sides of the same coin. एक ही coin के दो sides हैं. एक के बिना दूसरा नहीं है, दूसरे के बिना पहला नहीं है. So make it very clear. Let's move on everyone. Now, if I have to go with your name of the chapters and number of lectures and everything, see one thing is very clear. आप 11th में आपका base, आपके fundamental strong बनाओ. 12th would be an easy walk. Do not worry about the national education policy. Related to that, many people are talking about coding, many of them are talking about everything is going to change. Agreed, there are going to be changes in bits and pieces, but at the end of the day, education would remain the same. So your focus be on 11th, making it the base. 12th would be an easy walk, and this would help you in your future career, your future programations, your future part as well. So please make it clear. Topic wise, I'm not going to discuss every topic, every chapter right now. Okay, I'll just give you a brief about the chapters so that we'll start with the main part. First is of course the basic concepts in economics. So this chapter deserves, according to me, it deserves complete 4 stars. Okay, so all the basic concepts जो आपको not just in 11th, not just in 12th, those are going to be helpful for your lifetime. So we'll be learning those concepts, and I don't have any problem. I can make 2 sub videos of this as well for your betterment. लेकिन conceptual clarity highly important. दूसरा, money chapter, very favorite of everybody. Topic ही ऐसा है, नाम ही ऐसा है. लेकिन इसके साथ और एक बात है. It is also the favorite topic of the examiners. All the permutations, combinations are asked on this chapter. So money. This chapter rightly deserves 5 stars. Then there is one chapter purposefully which they have put, which is partition values. It is based on statistics. It is based on statistics. Next is economy of Maharashtra. यहाँ से शुरू होते हैं थोड़े higher level topics which in economics are called as macroeconomic topics. ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे. I am going to start with the first topic, the basic concepts in economics for now. Let's go for it.
अगर हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे पहले आती है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। लेकिन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स करते समय वन हैज टू कीप इट इन माइंड वेरी क्लियरली दैट इकोनॉमिक्स ये आज नहीं पैदा हुआ है। इकोनॉमिक्स आज नहीं पैदा हुआ। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, जो साइंस के बाद आने वाला साइंस जो था वो इकोनॉमिक्स ही था। ये वो सब्जेक्ट है जो द ग्रेट चाणक्य हु इज कॉल्ड एज द ग्रेटेस्ट पर्सन टू हैव एवर लिव्ड ऑन दिस प्लैनेट, इन दिस यूनिवर्स, जिनको ना ही इकोनॉमिक्स के बारे में सिर्फ, बट ही हैड नॉलेज ऑफ एवरी फील्ड। मतलब ऐसा बुक, किसी तो बुक में उन्हें पढ़ा था, द बुक्स नेम इज चाणक्य इन योर डेली लाइफ, रिटन बाय राधाकृष्ण पिल्लई। ही सेड दैट चाणक्य इज द ओनली पर्सन इन द यूनिवर्स जिनको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पता था। यू आस्क हिम एंड ही न्यू इट, फिलोसॉफी हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, फाइनेंस हो, नेशन हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एवरीथिंग, वॉरफेयर, किंगडम, एवरीथिंग। तो उनके टाइम से चलता आ रहा है इकोनॉमिक्स। रादर चाणक्य इन जनरल सेंस, नॉट जस्ट इन द ट्रेडिशनल, not just in the modern, but even for the future, Chanakya would be considered as a pioneer, as a firm holder of economics for the entire world, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को सबसे पहले कहा था अर्थशास्त्र, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को सबसे पहले टर्म दी थी अर्थशास्त्र। स्टूडेंट्स, हम लोग ना ऐसे ही पढ़ेंगे, यू नो, वी आर नॉट गोइंग टू गो टिपिकली इन दैट फैशन ऑफ रोट लर्निंग जहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, नथिंग अबाउट इट। वी विल गो एज पर द टेक्स्ट बुक, एग्रीड, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी मोर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, तो लेट्स डिस्कस देन गोइंग रोट लर्निंग। अर्थशास्त्र, जिसमें अर्थ का मतलब है वेल्थ, और जिसमें शास्त्र कहता है साइंस, जिसमें अर्थ का मतलब है वेल्थ और शास्त्र कहता है साइंस। ये चाणक्य जी ने कहा था, एंड दैट्स वेयर चाणक्य हैड रिटन दिस वे बैक व्हेन ड्यूरिंग द 10th, 12th, 13th century, जिस वक्त ह्यूमन civilizations had hardly started taking the break, started taking sprouts into it. He was so clever that उन्होंने अलेक्जेंडर की आर्मी को इंडिया तक आने का मौका ही नहीं दिया। Many stories on it, many mythological stories as well related to him, but for my side, as a student of economics, as a student of commerce, hats off to Chanakya ji for his brilliance into academics and making a subject rightfully available for masses like you and me. Let's go for it. अभी इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस से आती है। इकोनॉमिक्स आर टू टाइप्स ऑफ साइंस विच इज डिराइव फ्रॉम, सबसे पहला विच इज कॉल्ड एज द नेचुरल साइंस एंड नंबर सेकंड इज कॉल्ड एज द सोशल साइंस। नेचुरल साइंस सिंपल, जो नेचुरल साइंस है मतलब जो लॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जिसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स बनाई गई है, जिसके ऊपर ऑल सॉर्ट्स ऑफ साइंटिफिक लैबोरेटरिकल प्रिंसिपल्स हैव बीन बेस्ड अपॉन, those are called as natural sciences. Natural sciences typically have, as given over here, empirical approach. Empirical approach मतलब कुछ observations किए, कुछ analysis किया, कुछ explanations बनाए, कुछ अपने खुद के एक reports बनाई, and then it was proved to the world. उसको कहते हैं empirical. I'll repeat it for everybody. एम्पिरिकल मतलब वो अप्रोच है, एम्पिरिकल मतलब दैट स्टडी विच इज डिटेल्ड एनालिटिकल ऑब्जर्वेशंस बीइंग मेड एंड नाइस प्रोग्राम्स बीइंग फ्रेम्ड ऑन इट, दैट्स कॉल्ड एज एन एम्पायरिकल अप्रोच टू द स्टडी। ऑब्वियसली इट्स सिंपल, लाइक जैसे मैथमेटिक्स है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशंस, बेस्ड ऑन लॉजिक्स, जैसे फिजिक्स है बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट प्रैक्टिकल लॉज, जैसे केमिस्ट्री है जो कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जो केमिकल एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। हाउ इट इज प्रूव्ड विद सम एक्सपेरिमेंट, सम ऑब्जर्वेशन, सम अंडरस्टैंडिंग, वैसे ही है। डू यू अंडरस्टैंड दिस एवरीबडी? लेट्स मूव ऑन फर्दर। दूसरा, द सेकेंड पार्ट इनटू इट विच कम्स इज कॉल्ड एज अ सोशल साइंस। एंड क्यों सोशल साइंस? बिकॉज इकोनॉमिक्स हैज डायरेक्ट लिंक, जैसे हमने पहले ही देखा, इकोनॉमिक्स हैज गॉट ए डायरेक्ट लिंक विद रूपी। Not just rupee, it has got a direct link with money. So, rupee ही सिर्फ नहीं, it has got a direct link with money. And when I talk about money, it includes everything. It includes Indian rupee, it includes the US dollar,
it includes the European euro, that is the European currency. It also includes something called as the pound as well. All the currencies of the world come under money. तो इकोनॉमिक्स इज लिंक्ड विद मनी, जिसकी बदौलत उसको ये फाइनेंशियल साइंस कहा जाता है, जिसकी बदौलत दिस साइंस इज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज. दिस साइंस इज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज, टू बी वेरी क्लियर. और क्यों एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है? बिकॉज वेर इट कम्स टू मनी, when it comes to economics, it is more of a psychological concept. It is more based on assumptions. It does not work over here typically like science. हाँ ठीक है, ये एक मेटल लो, ये एक एलिमेंट लो, ये केमिकल लो, ये दूसरा, mix them together, form an alloy out of it and form a third element. It is not like that. Economics is not typically this plus this is this. Though the observations are made are exactly similar to an empirical approach जो हम mathematics में physics में कर रहे हैं, लेकिन economics is more about assumptions. It is more about presumptions. एक अंदाज लगाते हैं हम लोग, एक estimate लगाते हैं हम लोग. और estimate मतलब कैसा? A very simple example my dear friends. Good rains, आज इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई है. It will lead to good production of agricultural crops. It will automatically lead to good amount of production. Production ज़्यादा होगा, सप्लाई भी ज़्यादा होगा. जितना डिमांड है उस सबको हम लोग फुलफिल कर सकेंगे. आफ्टर दैट विल बी एबल टू एक्सपोर्ट इट एज वेल. एक्सपोर्ट करने के बाद हम लोग उसमें से प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं. सो इट इज इक्विवेलेंट. हैप्पी. और ये किसके ऊपर बेस्ड थे? एक फैक्टर, बारिश अच्छी हुई तो एवरीथिंग विल रन ऑटोमेटिकली नाइसली, एंड दैट इज व्हाई इकोनॉमिक्स इज मोर अबाउट बिहेवियरल साइकोलॉजिकल साइंस. Did you understand this everybody? Let's move on further with this. It's an abstract. Abstract मतलब based on psychology, based on emotions, जो intangible है. Economics दिखता नहीं है. At least जैसे साइंस में हम लोग कह सकते हैं कि मैंने दो एलिमेंट्स लिए, ये और मैंने तीसरा एलिमेंट बाहर निकाला. ये साइंस में हम बोल सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम बोल नहीं सकते ऐसा. क्यों? इकोनॉमिक साइंस में मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा, बिकॉज इकोनॉमिक साइंस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजिकल साइंस. इट इज इनटेंजिबल, दिखता नहीं है लेकिन महसूस जरूर होता है. दिस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट साइंस. लेट्स मूव ऑन फर्दर एवरीबडी. ह्यूमन बिहेवियर कैन नेवर बी एम्पिरिकली टेस्टेड. ऑब्वियसली वी आर अ ह्यूमन बॉडी. इट्स नॉट अ केमिकल. It's based on emotions, it's based on psychology, it's based on physiology as well. And that's how our intentions and ideas are all about. Let's move further. Now we'll learn a basic definition. ऐसा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन economics जो word है वो कहाँ से आया है? Where does origins of economics lay? बच्चों, origins of economics come from the Greek understanding, the Greek word जिसका मतलब है, ग्रीक वर्ड जिसका ओरिजिन है ओइकोनोमिया. ओइकोनोमिया का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज हाउस होल्ड मैनेजमेंट. इकोनॉमिक्स को पॉल सैमुअलसन, एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा है इट इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस. वंडरफुल. इट इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस. व्हाई? बिकॉज सोशल साइंस में सोशियोलॉजी इज द किंग, वैसे ही इकोनॉमिक्स इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस. किंग इज सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस. किसने कहा? इट वाज सेड बाय प्रोफेसर सैमुअलसन, पॉल सैमुअलसन. Now, when we talk about economics is referred to as science, which is a social science, agreed. Let's basic understand कि sir oikonomia management of household, fine, understood. हम लोग घर में economics use करते हैं sir? Definitely. Where do we use economics at home? Let's pay attention. We'll take this person Mr. X. Mr. X earns monthly rupees 2 lakhs. तो मिस्टर एक्स का इनकम हुआ 2 लाख रुपए. इज सिंपल एज दैट. मिस्टर एक्स अर्न्स विद एन इनकम ऑफ रुपीज 2 लाख. इनकम हो गया 2 लाख रुपए. वंडरफुल. नाउ इफ दिस इज एन इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, लेट्स मूव फर्दर. मिस्टर एक्स हैज गॉट वाइफ मिस वाई. ही हैज गॉट 2 kids. द नेम ऑफ द kids इज 2G and 3G. Okay, we'll go a bit further. Now the times have changed. We'll learn. It's 4G and 5G. 2 kids. Mr. X has got 2. He's got parents with him, his father and his mother. So this becomes a total family of 6 people. 6 लोग हैं, ठीक है.
छः लोगों का इनकम, 6 लोग हैं, इनकम आ रहा है मिस्टर एक्स का खुद का 2 लाख रुपए। नाउ आउट ऑफ दिस 2 lakhs मिस्टर एक्स क्या करता है, ही मैनेजेस हिज मंथली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस ऑन हाउस होल्ड। हम लोग हमारे घर में भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मंथली एक्सपेंसेस जो है, मेडिकल बिल्स होते हैं, रेंट्स होते हैं, टेंट्स, एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज्ड। वैसे ही मिस्टर एक्स भी कर रहा है। मिस्टर एक्स 2 लाख में से 50,000 रुपीज ही स्पेंडिंग ऑन मंथली एक्सपेंसेस पर मंथ। कितने स्पेंड कर रहा है बेटा वो, ही स्पेंडिंग 50,000 रुपीज एंड प्लस एनी अदर एक्सपेंसेस जनरल, वो खर्चा रहे उसको 20,000 रुपीज अगेन पर मंथ। सो टोटल एक्सपेंसेस फॉर 1 month इज 70,000 रुपीज। ग्रेट। तो ऑब्वियसली 2 लाख में से 70,000 स्पेंड किए, मिस्टर एक्स के हाथ में बचते हैं 1,30,000 रुपीज। इस 1,30,000 रुपीज में से मिस्टर एक्स क्या करता है, ही थिंक्स अबाउट सेविंग्स, he thinks about investments and he thinks about using his finances, using his money in the righteous manner. Now जब वो सेविंग करेगा, जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा, जो फाइनेंस अपने अच्छे से यूज़ करेगा, इसी को हम लोग कहते हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। यहीं पर जन्म होता है इकोनॉमिक्स का। इसीलिए इकोनॉमिक्स ओरिजिनली हैज़ बिन डिराइव्ड माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका नाम है ओइकोनॉमिया एंड दैट मीन्स हाउस होल्ड साइंस। आपके और मेरे घर में यही होता है, घर के खर्चे के लिए पैसा निकालते हैं, पैसों में से, उसी पैसों में से हम लोग कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ज़रूरत पड़े तो ATM में से पैसा विड्रॉ करते हैं। दैट्स इकोनॉमिक्स। वेरी गुड, लेट्स मूव फर्दर एवरीवन। नाउ इसके बाद इनके बारे में तो हमने पहले ही देखा है कि इकोनॉमिक्स इज कौटिल्या's views. चाणक्य was also peculiarly being known as Kautilya. Okay, Kautilya was a great statesman, philosopher. He is also known by the names called as Chanakya or Vishnugupta, and that's where he's authored a great book called as अर्थशास्त्र। लेकिन कौटिल्य जी ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं, वो 4 पॉइंट्स ध्यान में रखने। 4 पॉइंट्स कौन से? सबसे पहला, क्रूशियल रोल, पैसा, प्रॉफिट, लॉस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गवर्नमेंट जब कहती है कि हमने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट हमारे देशवासियों के लिए दिया है, ये किससे बजट है, ये क्या है, ये इकोनॉमिक्स ही है। कोई कंट्री 1 लाख करोड़ रुपए लोगों को दे सकती है, कोई कंट्री 10 लाख करोड़ रुपए दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंट्री। और ये कैसे समझती है? दिस इज अंडरस्टूड फ्रॉम द टर्म कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स ओनली। फर्दर, इट फोकसेस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ, it focuses on creation of wealth as the means to ensure welfare of the state. जितने ज़्यादा हमारे देश में लोग पैसा कमाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा देश आगे बढ़ेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, टेक एन एग्जाम्पल माई डियर फ्रेंड्स ऑफ कंट्री लाइक इंडिया एंड अनदर कंट्री कॉल्ड अमेरिका। आई एम एन इंडियन फर्स्ट, एंड ऑफ द डे, लेकिन इंस्पिरेशन लेना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंडिया एंड अमेरिका, वी मूव अराउंड इन इंडिया एवरीवेयर। रोड्स किधर ठीक नहीं है, बिजली की समस्या अभी भी गांव में है, प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग, प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीम अनहाइजीन, वी फेस दिस प्रॉब्लम्स अपार्ट फ्रॉम द गुड थिंग्स दैट वी हैव विच आर वंडरफुल। गो टू US, एवरीवेयर वेल क्लीन रोड्स, टाइडी रोड्स, वेल मेंटेन्ड थिंग्स। व्हाई? हु मेक्स कंट्री माय डियर फ्रेंड्स? सिटीजन्स मेक कंट्री। हम लोग देश बनाते हैं, देश हमें नहीं बनाता है, हम लोग देश को बनाते हैं। एंड व्हेन वी मेक अ कंट्री, we are the ones who should think about the betterment of our nation as well. हमारा इनकम बढ़ेगा तो हम लोग सरकार को टैक्स दे पाएंगे। सरकार को अगर हम लोग अच्छा टैक्स देंगे, उसी टैक्स में से सरकार मैक्सिमम बेनिफिट्स हमारे देशवासियों को दे सकता है। जैसे आजकल इंडिया में जगह जगह पर देयर इज मेट्रो कंस्ट्रक्शन, मेट्रो प्रोजेक्ट्स गोइंग अराउंड। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? डेवलपमेंट। यू हैव राइट टू से कि ये मेट्रो के लिए पैसा मैंने मेरी जेब से दिया है। कैसा? मैंने टैक्स भरा, उसी टैक्स में सरकार मुझे मेट्रो बांध के दे रही है। दिस इज डेवलपमेंट, दिस इज ग्रोथ एंड दिस इज बेनिफिट what which we all should avail and enjoy. So this is one thing. वेलफेयर स्टेट, सबकी भलाई होनी चाहिए। सबकी भलाई कब होगी? जब देश आगे बढ़ेगा। देश आगे कब बढ़ेगा? when there would be education. एजुकेशन मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद लोग ऑटोमेटिकली पॉवर्टी से उभर के आएंगे एंड देन दे विल बी बेटर ऑफ। नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, सरकार अच्छे से काम करनी चाहिए।
कॉम्पिलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ये दोनों जब एक साथ आएंगे फॉर द गुड कॉज, ध्यान दो, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स दैट इज अर्थशास्त्र शुड कम टुगेदर फॉर अ गुड कॉज। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब क्या है? एवरीबडी विल ग्रो, एवरीबडी विल बी बेनिफिटेड, nobody would be left aside. So Narendra Modi ji was a politician. He brought in economics, so is Arthashastra together. So when politics and economics was brought together, was compiled together, it led to the formation of, pay attention everybody, when politics and economics was brought together, it led to the formation of political system based on good economic values. इसीलिए हमने पिछले 2014 से 2020 तक कोई भी सरकार की वजह से, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, नो फ्रॉड, नो स्कैम, वेरी गुड, बिकॉज पॉलिटिक्स has been compiled with economics for a very 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 good reasons. This is good governance. So this is good governance. Let's move on further everybody. अभी इकोनॉमिक्स में कुछ चंद ऐसे लोग थे जो इनविंसिबल कहते हैं, हम लोग उन्हें क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज इनविंसिबल इन इकोनॉमिक्स। इनविंसिबल का मतलब क्या है? इनविंसिबल मतलब वो जिसका मतलब है उनको दुनिया में किसी के, मतलब देयर इकोनॉमिक्स, देयर सब्जेक्ट, देयर थियरीज, यू एंड मी हैव कैनॉट डाउट इट। हम डाउट ही नहीं कर सकते द लेवल एट विच उन्होंने अपनी थियोरीज बेस की है। मतलब इतनी बेस्ट थियोरीज उन्होंने दुनिया को दी दैट दे वेंट ऑन टू बी कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले आते हैं उसमें कॉल्ड एज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ द फर्स्ट पर्सन who's coined the theories of economics, जिन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज वेल्थ ओरिएंटेड। इसका मतलब क्या है? वेल्थ ओरिएंटेड मतलब मोर द मनी इन एन इकोनॉमी, मतलब किसी आदमी के हाथ में ज़्यादा पैसा, ऑब्वियसली टेल मी डियर स्टूडेंट्स, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा कि बुरा होगा? इट वुड बी बेटर। सो मोर द मनी, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और हायर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? टू केसेस लेते हैं। देयर इज फर्स्ट पर्सन कॉल्ड मिस्टर ए एंड देयर इज सेकेंड पर्सन कॉल्ड मिस्टर बी। Mr. A says, I have a monthly income of rupees 20,000 and Mr. B says, I have a monthly income of rupees 2 lakhs. एक, जैसे हमने पहले ही कहा है, economics is an abstract science. It is not a scientific science, it is an abstract science. So who will live a better life? Of course, Mr. B will live a better life. It does not mean that he would be arrogant, but 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, so obviously he will have a better flat, a better car. He would have better clothes to wear. He would give better education to his family, to his children. He would give everything to his family in a better manner. And that's why Mr. B would live a better life than Mr. A, जो वही एडम स्मिथ ने कहा है। एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, इन्होंने यही कहा, इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स। It's a wealth oriented science. Please pay attention everybody. It's a wealth oriented science. आगे, और उन्होंने क्या कहा? ये कहाँ पे मेंशन किया उन्होंने मेंशन किया 1776 में, मतलब 3 सेंचुरीज बिफोर, 3 सेंचुरीज बिफोर, 350 साल पहले उन्होंने ये थियोरी कॉइन की थी। और जिस 300 साल पहले जिसमें उन्होंने बुक लिखी, बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। उस बुक में उन्होंने मेंशन किया ये थियोरी दैट इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ ओरिएंटेड साइंस। क्या पॉइंट्स है उनके उसमें? इकोनॉमिक्स सक्सेसफुली होगा जब देयर इज नो लेसेस फेयर पॉलिसी होगी, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट आएगी सेल्फिश गेन्स आएंगे, ऐसा उनका मानना था। बिकॉज इवन वी हैव ऑब्जर्व दैट पॉलिटिक्स इज अ करप्ट सिस्टम, ऐसा हमारे यहाँ पे मानते ही ये लोग। सी इफ वी वॉन्ट टू डू बेस्ट, उसमें हम लोग बुरा कुछ, मतलब वी कैनॉट डू समथिंग विच इज रॉन्ग। टू डू द बेस्ट, टू बी द बेस्ट, वी हैव टू डू द बेस्ट। अगेन, when I say that I am the best, it's not out of arrogance. I say it as an option, as a provoking to me that if I am the best, I need to work like best, I need to be like best, and I need to act like best.
तो वही दिया है उन्होंने, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स को एक साथ लेके आगे बढ़ सकती है, बट नॉट इंटरफेयरिंग एवरी टाइम। लेट इकोनॉमिक्स डेवलप, ग्रो ऑन इट्स ओन। इट्स अ वंडरफुल फाइनेंशियल साइंस। आगे उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज वेल्थ, कैपिटल एंड वेल्थ। एब्सोल्युटली, कैपिटल जिसको हम लोग कंसिडर इंपॉर्टेंट करते हैं, कुछ भी शुरू करना है बिजनेस, कैपिटल चाहिए, और यही कैपिटल है जो वेल्थ जनरेट करता है। चलो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जो बीच में आपको समझेगा भी। द एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देश की ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी जिनका मार्केट कैपिटल, मतलब मार्केट में उनकी वैल्यू इज टुडे 14.5 लाख करोड़। 14.5 लाख करोड़ की आज जिस कंपनी की मार्केट में वैल्यू है, जिनके पास अपनी खुद की कैश इज वर्थ 6.3 लाख करोड़, ये कंपनी चलाने के लिए मिस्टर धीरूभाई अंबानी, द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, इन्होंने कुछ कैपिटल लिया था। और उस वक्त 50 इयर्स बैक, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 साल पहले उन्होंने 50 साल कंप्लीट कर लिए, 2 साल पहले उन्होंने 50 साल कंप्लीट कर लिए। उस वक्त मतलब उससे पहले 50 इयर्स, धीरूभाई अंबानी टुक लोन ऑफ हाउ मच, 5,000 रुपीज़ टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो वो क्या था, वो कैपिटल था। और उसके बाद आप आज जब हम देखते हैं रिलायंस की सिचुएशन या मुकेश अंबानी की सिचुएशन, मुकेश अंबानी इन टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड। कैपिटल लिया, बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में से पैसा आया, जनरेटेड वेल्थ। दैट्स अ 3 टायर। इट्स लाइक द 3 पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। कैपिटल फर्स्ट पॉइंट, उससे क्या जनरेट किया, बिजनेस जनरेट किया, बिजनेस को और कैपिटल को एक साथ लेके गए, क्या जनरेट किया, वेल्थ जनरेट किया। सो कैपिटल, बिजनेस एंड वेल्थ आर द 3 पैरामीटर्स ऑफ अ बिग ट्रायंगल। फर्दर, नेचर्स लॉ, एज आई गिव एन एग्जाम्पल, बारिश, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, फार्मिंग वंडरफुली डन, सप्लाई अच्छा, प्रॉफिट अच्छा, इट्स ऑल लिंक्ड। रेन, वेदर इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट एलिमेंट इन इकोनॉमिक्स। बारिश नहीं, एग्रीकल्चर नहीं, स्पेसिफिकली इन आवर कंट्री, क्योंकि हमारा देश एग्रेरियन इकोनॉमी है और हमारे देश का किसान अपनी ज़मीन को सोने से भी ज़्यादा पूछता है। क्यों? बिकॉज दैट्स व्हाट इज हिज ब्रेड एंड बटर। उसके बिना उसको कोई ऑप्शन नहीं है, ना रह सकता है, ना जी सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है। सो इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो एग्रीकल्चर पढ़ो। आई रिमेंबर वन ऑफ द ब्यूटिफुल वर्ड्स बीइंग सेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी, द ग्रेट महात्मा। उन्होंने कहा कि किसी को इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में मत जाओ, इंडिया के गाँव में जाओ। गो टू द फार्म लैंड्स ऑफ इंडिया, go to rural lands of India and then study economics. You will understand economics. Getting it, everybody? See, my pattern of teaching is very simple. I'm not going to keep on talking about 9th and 10th. That was pattern used then. We are grown-ups. We have to deal in a bigger perspective. हमारा attitude भी वैसे ही होना चाहिए. Any doubts? Please feel free to comment, everybody. Let's move further. Division of labor, of course, more the number of people in business, more the number of people in employment, उनको पैसा मिलेगा, इनकम आएगा तो उनकी ऑब्वियसली लाइफ थोड़ी बढ़ती जाएगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हीं के साथ दूसरे ऐसे थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को स्ट्रेट अवे बोला कि इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ के बारे में नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स सबकी भलाई के बारे में भी देखना चाहिए। मतलब अगर कोई आदमी 10 रोटी उसको आराम से मिल रही है, लेकिन उसकी खाने की क्षमता सिर्फ 2 रोटी है, लेकिन 10 रोटीज इज एंजॉइंग, दैट्स लग्जरी फॉर हिम। किसी दूसरे को कुछ मिल ही नहीं रहा है खाने के लिए। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो दोनों में बेसिक डिफरेंस है, वन इज गेटिंग एवरीथिंग एक्सेस, क्या करूँ क्या नहीं ऐसा है, और दूसरे को कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये डिफरेंस नहीं चाहिए। वी वॉन्ट एवरीबडी टू बी इक्वली देयर। अगर इसके पास 5 रोटी है तो इसको भी एटलीस्ट 1 रोटी तो मिलनी चाहिए। ये वेलफेयर ओरिएंटेड का डेफिनेशन हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड दिस एवरीबडी? फर्दर, इसलिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल वेलफेयर ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स और नियो क्लासिकल थे। मतलब इन्होंने कहा कि मैं पुरानी वैल्यूज में बिलीव करता हूं, लेकिन मैं फ्यूचर की भी सोचूंगा। इट्स नियो क्लासिकल, दैट्स वाई।
इन्होंने बुक लिखा अपना खुद का, तो बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890 में बुक पब्लिश हुआ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisites. Obviously, economics पैसा है ही, अगर पैसा है तो economics है, wonderful. लेकिन पैसा आएगा तो लोगों की बेटर लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा, सबका वेलफेयर होगा, सबका अच्छा होगा, सबका अच्छा ही होना चाहिए. दिस इज व्हाट ही सेड. उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स बोले. वेलफेयर, कॉमन मैन को पढ़ो. सी कॉमन मैन, कोरोना की वजह से बेचारे का बिजनेस कुछ चल नहीं रहा था, ही वॉज डाउन. धीरे धीरे अनलॉक हो गया, हिज बिजनेस स्टार्टेड कमिंग बैक टू नॉर्मल. इकोनॉमिक्स स्टार्ट्स विद इट डज नॉट स्टार्ट विद मुकेश अंबानी, इट स्टार्ट्स विद द कॉमन मैन. कॉमन मैन मतलब कौन? जो कमाते हैं, जोड़ते हैं, खाते हैं और मस्त अपनी जिंदगी. दैट्स देयर लाइफ इज वर्क, अर्न, एक्सपेंड, लिव. वर्क, अर्न, एक्सपेंड, लिव. That's their life. That's what they are doing, everybody. And that's why study of an ordinary man is the basics of study of economics anytime. दूसरा, economics abstract science है, it's based on human behavior. तीसरा, it's a material welfare. मतलब मेरे पास पैसा है तो मैं डायरेक्टली BMW लेने की नहीं सोचूंगा, मैं कार लेने की नहीं सोचूंगा. मेरे पास पैसा है तो मैं अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने की सोचूंगा. फॉर एग्जांपल फूड, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग, फॉर एग्जांपल शेल्टर. ये पहले चाहिए. तो मटेरियल नीड्स हो गए ना. समथिंग इन मटेरियल. फूड मेरी मटेरियल नीड है, मैं हवा खा के नहीं जी सकता. आई वॉन्ट फूड टू ईट, आई वॉन्ट समथिंग टू च्यू, आई वॉन्ट क्लोथ्स टू वेयर एंड आई वॉन्ट शेल्टर. छत होना चाहिए, आई कैन लिव बेटर. That's food, clothing and shelter. That's material welfare. Economics is not simply a study of wealth. Economics is not simply a study of wealth. जाहिर सी बात है, मुकेश अंबानी की इकोनॉमिक्स स्टडी करके क्या फ़ायदा? I have nothing. I will study. अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, yes, मुकेश अंबानी स्टोरी इज गुड फॉर बीइंग अ बिजनेसमैन. लेकिन अगर मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो मैं कॉमन मैन की थ्योरी पढ़ूंगा, कॉमन मैन की पढ़ाई के बारे में सोचूंगा, कॉमन मैन की सिस्टम के बारे में सोचूंगा. एंड आई कैन लर्न कि हाउ इज ही मैनेजिंग. यार 10,000 रुपये महीने के मिल रहे, घर में 4 लोग हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारेगा वो, कैसे उनको वो स्टेबिलिटी देगा. दैट इज इकोनॉमिक्स. दैट्स वाई इकोनॉमिक्स बिगिन्स विद द रूट. इट डज नॉट बिगिन विद द फ्रूट्स, इट बिगिन्स विद द रूट्स. दिस वेलकम्स मी टू द लास्ट डेफिनेशन लियोनल रॉबिन्स ने, जिन्होंने कहा इकोनॉमिक्स स्कैर्सिटी के बारे में भी करता है. मतलब सिर्फ अच्छा प्रॉफिट नहीं, इकोनॉमिक्स लॉस, डेफिसिट, स्कैर्सिटी, इसके बारे में भी सोचता है. दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय रॉबिन्स, जिनका नाम था लियोनल रॉबिन्स. इन हिज बुक एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक साइंस, इन्होंने कहा Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means. मतलब जितनी मेरी ज़रूरतें हैं और जितनी मेरी उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेरे पास लिमिट, मतलब मेरे पास ऑप्शंस हैं, इसको मैं कहता हूँ इकोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू लियोनल रॉबिन्स एज वेल. जाहिर सी बात है, मुझे महीने के लगते हैं 10,000 रुपये, लेकिन मेरा इनकम है 12,000 रुपये. कट टू कट मैनेज हो रहा है, लेकिन इनको मैनेज करना इस सेल्फ इट्स कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स. ये स्कैर्सिटी डेफिनेशन हो गया. इसलिए रॉबिन्स कहते हैं हमारी ज़रूरतें आर नेवर गोइंग टू बी स्टॉप, दे आर अनलिमिटेड. आवर डिमांड्स विल कीप ऑन राइजिंग एंड राइजिंग. मीन्स आर कंपैरेटिवली लिमिटेड, लेकिन उन्हीं डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो कम है. डिमांड इधर है लेकिन सप्लाई इधर है. ये जो बीच में की गैप है ना, दिस गैप itself studies about economics. ये wonderful teachings है, later on we'll understand. Wants are gradable on the basis of priority. Wants are gradable on the basis of priority. इसका मतलब क्या है? मेरी प्रायोरिटी या मेरी want for example is of purchasing, let's say Hyundai की i10. That's my want and that's my desire, क्योंकि मैं वही कार अफोर्ड कर सकता हूँ. Today, 5 years down the line, I might afford something called as Honda City. Hyundai की कीमत आज की तारीख में 7 लाख है, Honda City की कीमत आज की तारीख में 12 लाख है. I cannot afford Honda City. 5 years later, I can afford Honda City. What changed?
माई प्रायोरिटीज चेंज्ड। तो मेरी प्रायोरिटी कौन बदलता है? मेरा इनकम ही बदलता है ना। हायर द इनकम हायर द डिमांड। जिनका इनकम बहुत ही अच्छा है, दे कैन अफोर्ड परचेसिंग एंड बाइंग अ टी शर्ट ऑफ नाइके वर्थ 5,000 ऑल्सो। लेकिन बेचारा जिनका इनकम ही 10,000 है, कैन दिस पीपल बाय अ टी शर्ट वर्थ ₹5,000? दे कैन नॉट बाय। सो जितना मेरा इनकम, अंडरस्टैंड एवरीबडी, जितना मेरा इनकम उतना ही डिपेंडिंग अपॉन माई इनकम माई एक्सपेंसेस विल डिपेंड, and depending upon these two my entire life would be dependent upon, my entire life would be dependent upon. Clear everybody? Let's move on further now. In 1933 में सर रैगनर फ्रिट्ज coined a term, इन्होंने दो टर्म्स निकाले। A very interesting part was coined by रैगनर फ्रिट्ज, इसीलिए बहुत सारे बुक्स में अगर देखा जाए तो कहा जाता है रैगनर फ्रिट्ज is the pioneer of two main branches, of two main types of economics which you and me utilize it today, which you and me follow it today. रैगनर फ्रिट्ज 1933 में कौन से दो टर्म्स थे बेटा? Two terms that he gave us were, first one is micro and second one was macro. Micro और macro, you know there was something which was called micro, आप और मैं, household economics और इकोनॉमिया, घर घर की बात है तो माइक्रो घर घर में आएगा। मैक्रो बड़ी इकोनॉमी, देश के बारे में स्टडी करेंगे, देश का भी इनकम है ना। देश को जब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो वी डोंट कॉल इट एज अ कंट्री, वी कॉल इट एज एन इकोनॉमी, दैट्स मैक्रो। फर्स्ट थिंग वी विल स्टडी इज व्हाट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेट्स गो फॉर दिस, कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल। Microeconomics deals with the behavior of the individual variables such as household, worker, firms and industry. Kenneth Boulding definitions of microeconomics. Microeconomics is the study of particular firms, particular households, individual prices, wages, incomes, individual industry and a certain commodity. सबसे पहले तो माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो जो है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज माइक्रोस। मैक्रो जो है वो वर्ड डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज मैक्रोस। माइक्रोस का मतलब है वन, मैक्रो का मतलब है मेनी। सिंपल, ये बात ध्यान में रखो। माइक्रोस का मतलब है वन, मैक्रोस का मतलब है मेनी, दैट्स इट। केनेथ बोल्डिंग मतलब क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स ये ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कहती है सिर्फ इंडिविजुअल, सिर्फ सिंगल इसके बारे में, एक ही चीज़ के बारे में बात करती है। फॉर एग्जाम्पल मी, माई इनकम, माई एक्सपेंस, एवरीथिंग, माई सेविंग्स, माई इन्वेस्टमेंट, माई लाइफ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे बेसिक कंसेप्ट इसमें सबसे पहले वांट, हमारी ज़रूरतें है किस, कौन सी बेसिक डिमांड्स है, कौन सी बेसिक वांट्स है? फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर ये हमारी बेसिक वांट है, एग्रीड। तो इसके साथ क्या आएगा आगे? इसके साथ आएगा, अरे वांट्स की टाइप्स है ना, तो वांट टाइप्स कौन से? वांट्स आर अनलिमिटेड, ये बढ़ते ही जाने वाला है, बढ़ते ही जाने वाला है। वी हैव, लेट्स से सबसे पहले फोन्स थे, ओके, वे बैक आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई पास्ड आउट माय 10th 2007 में। उस वक्त ना नोकिया का 1110 बटन वाला फ़ोन आया था जिसमें स्नेक करके गेम होता था। आई हैड दैट फोन एंड आई वॉज वेरी फैसिनेटेड कि यार कितना बेस्ट, मतलब लाइफ इज विद मी, वाओ। Eventually that technology changed to flip phones, then touchscreen came, then Micromax came, then Lava came, all these companies came, and then Vivo, Samsung, and now we are somewhere in Samsung A2, if I'm not wrong. It's a notebook phone which folds up, which closes like a book. Where the technology has gone, मुझे लगता है वो फ़ोन मेरा सबसे पहला जो फ़ोन था, from there I wanted a better, from that I wanted a better, जैसे करते 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 मेरी डिमांड्स रुकने नहीं वाली, इट्स कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग एंड मल्टीप्लाइंग। वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, हर बार आने वाले हैं, हर बार, ऐसा नहीं कि आज रुका कल नहीं, एवरी टाइम इट इज गोइंग टू बी देयर। वांट्स डिफर विद एज, वांट्स डिफर विद एज। अ किड वुड वांट टॉयज टू प्ले, a young, I mean a child between his age of in adolescent age, teenage में, he would want something, cricket bats and everything to play, maybe a better option as well. I would want something else,
योर पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स वुड वांट समथिंग एल्स, ग्रैंड पेरेंट्स वुड वांट समथिंग एल्स. सबकी अपनी अपनी डिफरेंट नीड्स है, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट डिमांड्स है. दैट्स वांट विच डिफर्स विद एज. वांट्स डिफर विद जेंडर. Men want different, women want different, a boy wants something different, a girl wants something different. सबकी wants अलग अलग हैं. Wants differ due to preferences. Preferences, choices. I prefer going to a normal cafe and having my food. Somebody prefers going to only Starbucks and having his food. Fine. मेरी भी want है, उसकी भी want है. I can afford a normal cafe, he can afford a Starbucks. I can afford traveling, let's say if I have to travel, I can afford traveling in business class. Someone can afford traveling in economic class. That's okay. That's okay. That's want. I can afford that. I can go for it. I don't want that. I cannot go for it. Let's move further. Wants differ with seasons. Wants differ with seasons. Season के साथ want differ होती है. Great. Wants differ due to culture. कल्चर के साथ भी वांट डिफर होती है. कल्चर के साथ भी वांट डिफर होती है. इंडियन कल्चर वुड हैव डिफरेंट वांट्स, यूएस कल्चर वुड हैव डिफरेंट वांट्स, अमेरिकन कल्चर वुड हैव डिफरेंट वांट्स. नाउ देयर आर वेरियस क्लासिफिकेशंस ऑफ वांट्स. फर्स्ट वन, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक वांट्स मतलब फूड, मेडिसिन. आई हैव टू पे फॉर इट, तभी मेरी वो वांट सेटिस्फाई होगी. दैट्स एन इकोनॉमिक वांट. इकोनॉमिक का मतलब क्या है? पैसा दिया, खर्चा किया, आई हैव इट. That's economic want. पैसा दिया, I bought my thing, that's economic want. नॉन इकोनॉमिक का मतलब क्या है? ऐसी want जो नॉन इकोनॉमिक है, मतलब पैसा दे के नहीं मिलती. एयर, सनशाइन, एटमॉस्फेयर, I don't pay for it, it's available in natural for me. That's नॉन इकोनॉमिक want. दूसरी, इंडिविजुअल want एंड कलेक्टिव want. माई, मी, माई सेल्फ, मेरी वॉन्ट, दैट्स इंडिविजुअल. मेरी पूरी फैमिली की वॉन्ट, वो कलेक्टिव वॉन्ट है. दैट्स इट. नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. इसको ना थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मतलब ध्यान में रखने के लिए, NLC. इट्स नॉट नेशनल NCL. ओके, इट्स नॉट नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज. इट इज़ नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. फूड, क्लॉथिंग, ये क्या है? ये मेरी नेसेसिटीज है, मेरी ज़रूरतें हैं. वॉशिंग मशीन, प्रेशर कुकर, ये क्या है? ये मेरे कंफर्ट्स है, आई नीड इट. And having, see there is one thing, okay, घर में फैन है, मेरी रूम में फैन है, that's my necessity. But having an AC only, that's not my necessity, that's my luxury. I want to have a car because I can take my family everywhere, that's my comfort, that's my necessity. But I want to have a BMW only, that's my luxury. This is the basic difference between a want, a necessity, a comfort and a luxury. Goods and services. Goods and services का मतलब क्या है? Teaching is a service. लेकिन टीचिंग करने के लिए मुझे पेन चाहिए, मुझे बोर्ड चाहिए, मुझे आज के ज़माने में आई वॉन्ट लैपटॉप, आई वॉन्ट स्टाइलस पेन एंड एवरीथिंग, एंड दैट इज वॉट माई गुड्स फॉर टीचिंग इज नीडेड. सो गुड्स इज फिजिकल, सर्विसेस आर एक्सपर्टाइज प्रोफेशनल सर्विसेज. यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब क्या है? कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट और वांट्स इज ए यूटिलिटी, इज ए यूटिलिटी. कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट मतलब मेरा फोन ये मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करता है. इट हेल्प्स मी इन कॉलिंग, मैसेजिंग, सोशलाइजिंग, helps in even paying out bills, helps in even getting payments from people. This is all my utility. I use it the maximum. That's utility. Next one, value. Value has two approaches in economics: value in use and value in exchange. Value in use and value in exchange. In use का मतलब क्या? It refers to the worth of a commodity. It refers to the worth of a commodity. ये तीन जो है ना, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज एंड ये इसका मतलब क्या है? एक्सप्लेन यू. वैल्यू इन यूज मतलब इट्स अ फ्री गुड, इट्स अ फ्री गुड. वैल्यू इन यूज, इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी. नो वन हैज टू पे प्राइस फॉर सनशाइन, लेकिन उसकी वर्थ कितनी है? डू वी पे फॉर द एयर? नो, बट कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट एयर? हवा के बिना आप लाइफ इमेजिन कर सकते हो? नेवर पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल. सो जिसकी वैल्यू इन यूज है लेकिन उसकी हम पे नहीं करते उसका, इट्स वैल्यू इन यूज. वैल्यू इन एक्सचेंज,
As such, it is not that much in value, but it has lot of paying capacity. मतलब पे किए बिना हम वो चीज़ यूटिलाइज ही नहीं कर सकते. आई वॉन्ट टू वॉच अ टीवी, अरे बट टीवी तो लो पहले, उसके लिए पे तो करो. दैट्स वैल्यू इन एक्सचेंज. So what have they given? It refers to the worth of a commodity or a service expressed in other terms. When this value is expressed in terms of money, it is called price of a commodity. When this value is expressed in terms of money, it is called price of a commodity. मुझे मेरी ज़रूरत टीवी है, फैन है, एसी है, लाइट है, मोबाइल है. I pay for it and I purchase it. That's value in exchange. वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, इसका मतलब क्या है? वाटर एंड डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, इसका मतलब क्या है? विल रेफर दिस एज वेल. वेट अ मिनट. जस्ट अ मिनट एवरीबॉडी. नाउ सम कमोडिटीज हैव अ हाई वैल्यू इन यूज बट लो एक्सचेंज वैल्यू. एग्जाम्पल वाटर, उसकी एज सच वैल्यू पैसों में नहीं है, अहमियत बहुत है. Can you imagine life without water? No. Similarly, diamond यूज नहीं किया तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला. इट्स नॉट गोइंग टू हार्म आवर लाइफ एनीवेयर. लेकिन एक डायमंड खरीदने के लिए कितनी प्राइस देनी पड़ती है? ह्यूज कॉस्ट. ह्यूज मतलब एब्सोल्युटली ह्यूज कॉस्ट. एंड दैट इज कॉल्ड एज वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज. मतलब पानी एक ऐसा है जिसकी पैसों में कीमत नहीं की जा सकती, बट इट इज एक्सट्रीम हाई वैल्यू. लेकिन डायमंड, उसका यूज, उसकी वैल्यू है लेकिन उसका यूज इतना नहीं है, बट वी पे एक्सट्रीम फॉर इट. दैट्स पैराडॉक्स. पैराडॉक्स मतलब क्या? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ की, पानी, इट इज चीपेस्ट अवेलेबल. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है लाइफ की, डायमंड, इट इज एक्सट्रीमली कॉस्टली अवेलेबल इन द मार्केट टुडे. That's water diamond paradox of values. Got it? Next one. Utility. Utility is over. Next one is wealth. Wealth refers to anything. Wealth refers to anything which has market value and can be exchanged for money. Utility, scarcity, transferability and externality. जो भी चीज़ हम पैसों से परचेस कर सकते हैं, जो भी चीज़ हम पैसों की वजह से ही एंजॉय कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेल्थ. दैट इज कॉल्ड एज वेल्थ. नेक्स्ट वन, पर्सनल इनकम. अर्निंग्स रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेस आर कॉल्ड एज पर्सनल इनकम. मतलब आई एम अ प्रोफेशनल, आई डिलीवर लेक्चर्स, आई अर्न मनी, आई इन्वेस्ट इन शेयर्स, आई हैव मनी. एग्जाम्पल इमेजिन करो. इमेजिन अ पर्सन कॉल्ड, let's say Mr. Shahrukh Khan, SRK. He earns money from films, he earns money from ads, that is promotional ads करते हैं. He earns money from his cricket team KKR. He earns money from business studios. He earns money by giving his film studio, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं मूवी स्टूडियो, ऑन रेंट. उससे भी पैसा कमाते हैं. कोई एक सोर्स है क्या? मल्टीपल सोर्सेस है. बहुत सारे सोर्सेस से वो पैसा कमाते हैं. वो सारे पैसों को एक साथ लेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए पर्सनल इनकम. डिड यू अंडरस्टैंड दिस एवरीबडी? दैट्स कॉल्ड एज अ पर्सनल इनकम. नेक्स्ट वन, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. इट इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एवरीथिंग. मतलब जो मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, वो सब देने के बाद जो मेरे हाथ में बचेगा पैसा, जो पैसा मैं मेरे खुद के एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए यूज करूंगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. डिड यू अंडरस्टैंड दिस एवरीबडी? PDIs. And next, then economic activities. Economic activities includes everything that we'll be studying about it in the later part. Okay, thank you so much.